आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। जी। बेटा कहाँ तक लिखा था हमने, क्या चालू था हमारा? आई थिंक सेकंड था, इंटरनेशनल एचआरएम का सेकंड यूनिट था हमारा चालू। हाँ सर, हाँ, एनालिसिस ऑफ सोर्सेस चालू है अभी। एनालिसिस ऑफ सक्सेस। लिख लिया या लिखने का होने का है? लिखने का होने का है वो। हाँ ठीक है। क्या? एनालिसिस ऑफ सक्सेस एंड फेलियर्स। हाँ। ओके। पूरा हेडिंग डालिए बेटा, एनालिसिस ऑफ सक्सेस एंड फेलियर्स ऑफ एक्वाजिशंस एंड मर्जर्स थ्रू एचआर पर्सपेक्टिव। Analysis and success and failures of acquisitions and merger through HR perspective. एक मिनट रुकिए बेटा। बेटा उसमें लिखो, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ लिखो। नहीं सर, आवाज नहीं आ रही। अरे बाप रे, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, अब आ रही। इन द इंटीग्रेशन फेज ऑफ in the integration phase of
merger and acquisitions, merger and acquisition, people issues include नीचे की लाइन में लिखो 1 रिटेंशन ऑफ की टैलेंट, सर आवाज नहीं आ रही। रिटेंशन ऑफ की टैलेंट, सेकंड पॉइंट नीचे के लाइन में कम्युनिकेशन, नीचे के लाइन में थर्ड पॉइंट रिटेंशन ऑफ की मैनेजर्स, फोर्थ इंटीग्रेशन ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर, उसमें लिखो, नीचे के लाइन में लिखो बेटा पैरा करके, द मेन फाइंडिंग्स ऑफ द थेसिस, the main findings of the thesis, the main findings of the thesis the main findings of the thesis are that the main factors are that the main factors are that the main factors explaining the success of merger, explaining the success of merger explaining the success of merger are the similarities are the similarities are the similarities and two merging companies and two merging companies and two merging companies in terms of their respective organizational structure, in terms of their respective in terms of their respective in terms of their respective organizational structure, business strategies and
business strategies business strategy, and external policy environment. External policy environment. External policy environment. लिख लिया? हाँ सर। हम्म। इफ नीचे के लाइन में लिखो ब्रैकेट करके, इफ यू आर एन if you are an if you are an employer ब्रैकेट में ऑनर कर ले, ब्रैकेट में ऑनर कर लो। comma, an acquisition is a good thing and acquisition is a good thing and acquisition is a good thing, comma, this means that your business, this means that your business। नंदनी जी आ गए आप? नंदिनी, इनका आवाज नहीं जा रही है क्या मेरी? हेलो नंदिनी, कहाँ तक लिखा? योर बिजनेस। बेटा कहाँ तक लिखा? योर बिजनेस। योर बिजनेस, ठीक है। gain so much revenue, gain GAIN, gain so much revenue, so much revenue, so much
हेलो, हाँ सर। हाँ बेटा, सॉरी नेटवर्क चला गया। मुझे बात बताइए, कहाँ तक लिखा? गेन सो मच रेवेन्यू। एंड पॉपुलैरिटी एंड पॉपुलैरिटी and popularity that another larger company that another larger company that another larger company sees its potential. Yes, yes, sees its potential Sees its potential sees its potential and purchase it and purchase it and purchase it and purchase it. Full stop. If you are an employee, 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 comma, you may have a different mindset. You have a different mindset. You have a different mindset of acquisitions. You have a Different mindset. Different mindset of acquisition. Okay? हाँ सर। हम्म, चलो, मुझे अभी पहला पॉइंट क्या लिखा था हमने इस यूनिट का? IHR प्लानिंग। उसमें क्या लिखा था बताइए? IHR strategy for the acquisition, utilization, important and preservation of organization human resources. Human resources planning is the process by which an organization ensures that it has the right number and right kind of people at the right place and at the right time, capable ठीक of ठीक है बेटा, ठीक है।
सुनिए सब लोग ध्यान दो। व्हाट इज एचआर प्लानिंग? In the first lecture, I told you that four separate departments looking separate sector perspective in the organization. Finance department thinks about the money. Marketing department thinks about to sell the product. Operation department to thinks about to make input into output. And most important, the HR department, human resource management department thinks about the employee. So first and most important work of the HR department is to retain, to acquire, to select, to recruit best candidate for the company who can perform the job in a best time, in a right time and in a right job, in a right task. मैंने आपको बोला था बेटा कि जब कभी भी कोई भी डिपार्टमेंट है कंपनी का, उसमें से एचआर डिपार्टमेंट, उसमें से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, तो क्या करेगा? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कंपनी के बारे में एक नया टैलेंट लाने के बारे में सोचेगा। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कंपनी में अच्छे टैलेंट को रिक्रूट करने के बारे में सोचेगा। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अच्छे टैलेंट को सिलेक्ट करने के बारे में सोचेगा, उनको टास्क अलॉट करेगा। देखिए एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है कि कंपनी के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी टास्क परफॉर्म करने हैं, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए राइट कैंडिडेट राइट टाइम पे अवेलेबल रहना चाहिए, अवेलेबल करवाना चाहिए। यही काम रहता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कंपनी के एम्प्लॉय के बारे में सोचता है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कंपनी के एम्प्लॉय के बारे में सोचता है। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम है कंपनी में अच्छे टैलेंट को अट्रैक्ट करना, एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट देना, एक अच्छे पेपर पे सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा नए कैंडिडेट क्या करें, हमारे कंपनी में आने के लिए अप्लाई करें। जितने ज्यादा कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उतने ज्यादा अच्छे कैंडिडेट को हम सिलेक्ट कर पाएंगे, और उनको ट्रेनिंग देने के बाद, उनको एक्वायर करने के बाद हम उनको क्या करेंगे, उनको अपने अपने टास्क के लिए, अपने अपने जॉब के लिए अपॉइंट करेंगे। कंपनी का काम होता है, कंपनी की एचआर प्लानिंग का काम होता है कि राइट कैंडिडेट मतलब एक अच्छा एम्प्लॉय राइट टाइम पे। मार्केटिंग का काम है, तो एचआर मैनेजमेंट का काम है कि कोई मार्केटिंग के स्पेशलाइज्ड बंदे को हायर करिए और कंपनी के प्रोडक्ट बेचने के लिए लगाइए। राइट टाइम राइट टास्क राइट पर्सन, राइट पर्सन कौन सा? मार्केटिंग का बंदा। राइट टाइम कौन सा? राइट टाइम कौन सा? जिस टाइम पे कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए वो टाइम पे वो कस्टमर को प्रोडक्ट अवेलेबल करवा के देना, मतलब किसका काम होता है? मार्केटिंग मैनेजर का काम होता है। तो राइट बंदा है, राइट टास्क पे राइट जॉब परफॉर्म कर रहा है, और वो रिक्रूट करने का काम, उसे सेलेक्ट करने का काम, उसे ट्रेनिंग देने का काम, उसको एक्वायर करने का काम, और उसको हमेशा के लिए रिटेन करने का काम किसका होता है? एचआर डिपार्टमेंट का होता है, जो एचआर प्लानिंग करते हैं। एचआर प्लानिंग मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। एचआर प्लानिंग मतलब ज्यादा से ज्यादा टैलेंट, ज्यादा से ज्यादा जो अच्छे एम्प्लॉय है वो कंपनी में क्या हुए? एक्वायर हुए, रिक्रूट होना चाहिए, सिलेक्ट होना चाहिए अच्छा टैलेंट। और कंपनी के एचआर मैनेजमेंट का ये काम रहता है कि जो टास्क परफॉर्म करने हैं वो टास्क परफॉर्म करने के लिए एक राइट एम्प्लॉय राइट टाइम पे चाहिए। क्लियर? आफ्टर दैट क्या है? Recruitment. रिक्रूटमेंट क्या होता है? Recruitment is a procedure that more and more talent will attract to the organization. देखिए रिक्रूटमेंट ऐसा होता है, दोनों को सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट को एक दूसरे से कंपेयर करके सोचते हैं। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है। अब रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि रिक्रूटमेंट में हम कैंडिडेट को अट्रैक्ट करते हैं टूवर्ड्स द कंपनी। रिक्रूटमेंट में हम कैंडिडेट को अट्रैक्ट करते हैं। रिक्रूटमेंट में क्या करते हैं? हम कैंडिडेट को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा अच्छे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी कंपनी में आने के लिए क्या करें? अप्लाई करें। और सिलेक्शन एक निगेटिव प्रोसेस होती है। सिलेक्शन में हमें कुछ एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना पड़ता है, कुछ कैंडिडेट को रिजेक्ट करना पड़ता है, इसलिए सिलेक्शन को निगेटिव प्रोसेस कहा जाता है। देखिए रिक्रूटमेंट मतलब ज्यादा से ज्यादा टैलेंट कंपनी में आना चाहिए, उसके लिए एक अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट डिजाइन करना, ये किसका काम है? ये रिक्रूटमेंट का काम है। और सिलेक्शन का काम क्या है? बंदे ने हमारी कंपनी में अप्लाई कर लिया है, अब हम उसके क्या कर रहे हैं? अब हम उसका स्क्रीनिंग कर रहे हैं, इवेल्युएशन कर रहे हैं, उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। इंटरव्यू लेने के बाद कुछ बंदों को हम सिलेक्ट करेंगे, कुछ बंदों को हम रिजेक्ट करेंगे। बंदों को, कैंडिडेट को रिजेक्ट करते हैं, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? निगेटिव काइंड ऑफ प्रोसेस कहते हैं। रिक्रूटमेंट पॉजिटिव, सिलेक्शन नेगेटिव। रिक्रूटमेंट
अट्रैक्ट करना टैलेंट को कंपनी के लिए, सिलेक्शन कंपनी में जो टैलेंट चाहिए उनको सिलेक्ट करना और बाकी के कैंडिडेट को रिजेक्ट कर देना, ये किसका काम होता है? सिलेक्शन का काम होता है। इसलिए रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस और सिलेक्शन को निगेटिव प्रोसेस कहा जाता है। रिक्रूटमेंट में क्या कर रहे हैं? हम नए नए टैलेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सिलेक्शन में क्या कर रहे हैं? हम इंटरव्यू लेके कुछ कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रहे हैं, कुछ कैंडिडेट को रिजेक्ट कर रहे हैं। डायरेक्टली सिलेक्शन कर सकते हैं क्या? नहीं। सिलेक्शन करने के लिए हमें रिक्रूटमेंट की प्रोसेस चाहिए। रिक्रूटमेंट की प्रोसेस कैसे हो रही है? रिक्रूटमेंट की प्रोसेस स्टार्ट ही होती है ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट ने हमारे कंपनी के लिए अप्लाई करना चाहिए। कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तभी तो सिलेक्ट या रिजेक्ट होंगे, राइट ना? कैंडिडेट अगर अप्लाई करेंगे तभी तो कैंडिडेट सिलेक्ट या रिजेक्ट होंगे। तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस कहा जाता है, सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है। रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें कुछ भी किसी को भी हम रिजेक्ट नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा बंदों को कंपनी में अप्लाई करवाते हैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट। और सिलेक्शन को निगेटिव कहा जाता है क्योंकि हम बंदों को कैंडिडेट को रिजेक्ट करते हैं। समझा? हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सुनिए। आफ्टर सिलेक्शन हमने रिक्रूट कर लिया, हमने रिक्रूटमेंट की एडवर्टाइजमेंट दे दी, बहुत सारे कैंडिडेट ने अप्लाई किया। बहुत सारे कैंडिडेट ने अप्लाई करने के बाद क्या हुआ? बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करने के बाद हमने उनका इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद हमें कुछ टैलेंट दिखा, कुछ टैलेंट नहीं दिखा, और जो बंदों में हमें टैलेंट दिया हमने उनको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अभी बात आती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। देखिए, क्वालिफाइड कैंडिडेट है हमारे पास, बट जो टास्क को परफॉर्म करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ऐसी मशीनरी है जो टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, नई टेक्नोलॉजी है जो हमारी कंपनी के अंदर है, तो वो टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए हमें जो बंदे हमने सिलेक्ट किए हैं वो बंदों को कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग देना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि सिलेक्ट करने के बाद हम सीधा उनको मशीनरी पे लगा दिए कैंडिडेट को। होता है क्या ऐसा? नहीं। सिलेक्शन और काम करने के बीच में हमें उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना पड़ता है। जो टास्क वो कैंडिडेट परफॉर्म करने वाला है, वो टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वो कैंडिडेट को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना पड़ेगा, उसको प्रोफेशनल करना पड़ेगा ना। देखिए, XYZ नाम की कंपनी है। XYZ कंपनी के नाम में जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कुछ ऐसी मशीनरीज है जो मशीनरी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हमने कहीं से इंपोर्ट की हुई मशीनरी है, जो मशीनरी को रन करना सिर्फ हमारी कंपनी जानती है। अभी हमने एक इंजीनियरिंग के बंदे को तो लगा लिया, मैकेनिकल इंजीनियर है, उसको हमने ला लिया, बट वो मशीन पे काम कैसे करना है वो बंदे को पता नहीं, वो कैंडिडेट को पता नहीं है। तो उस मशीनरी पे काम करवाने के लिए पहले हमें वो कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना पड़ेगा, ताकि वो मशीनरी पे हम जो टास्क को कैंडिडेट को दे रहे हैं वो टास्क को वो क्या कर सके? अच्छे से परफॉर्म कर सके, क्योंकि वो मशीन उसके लिए न्यू है, नई है, वो काम ही नहीं कर पाएगा। तो वो मशीनरी पे काम करवाने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कैंडिडेट को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देनी पड़ेगी। समझा? इजी इजी है बेटा। देखिए, HR मैनेजमेंट इज द मोस्ट इजी सब्जेक्ट इन द मैनेजमेंट। HR से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इजी रहते हैं मैनेजमेंट में। आप प्रोडक्शन ऑपरेशन पढ़ा होगा आपने, वो भी टफ होगा। फाइनेंस तो टफ ही है, स्टैटिस्टिक्स भी टफ है, और मार्केटिंग भी इजी है। मार्केटिंग इजी है, बट जितना HR इजी है उतना HR मार्केटिंग इजी नहीं है। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसी है, जैसे मार्केटिंग मिक्स है वो नहीं समझ में आती है, सेगमेंटेशन है वो जल्दी समझ में नहीं आता है, PLC है वो जल्दी समझ में नहीं आता है। बट HR एक ऐसी कंसेप्ट है जो कंसेप्ट हमें जल्दी समझ में आता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लड़कियां HR में जाती है। बहुत सारी ऐसी, मतलब आप कहोगे तो 90% सेक्टर जो HR डिपार्टमेंट होता है वो लड़कियों का होता है, उसमें लड़कियां ही होती है। क्यों? क्यों लड़कियां क्यों होती है? 90% ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर में लड़कियां ही HR क्यों होती है? लड़के क्यों नहीं होते हैं? कुछ गेस करो।
बताइए ना बेटा, लड़कियों में ज्यादातर क्वालिटी पोलाइटली बिहेव करने की होती है। क्या बात कर रहे हो, मुझे तो कभी नहीं लगा। होती है। रोहिणी, यू, आप कुछ सोचो बेटा, व्हाई ऑलवेज अ गर्ल इज a HR employee, HR manager in the company? 90, why 90% of the companies recruited girls as a HR head? Why? Tell me the quality of the girls, why they want to become a HR manager, or companies recruiting HR manager to a girl. Why? Rohini, हाँ सर। why? Why बेटा? रीना, हाँ सर। why? क्योंकि जिस तरीके से लड़कियां घर को संभालती है, या फिर हमारी मम्मी लोग घर को संभालती है, उसी तरह से कंपनी को संभालने के लिए लेडी चाहिए होती है जो एम्प्लॉय को समझ सके। लड़कियों में एक क्वालिटी होती है जो वो सामने वाले को जल्दी से समझ लेती है। वो क्वालिटी को यूज करते हुए ज्यादा से ज्यादा कंपनियां लड़कियों को रिक्रूट करती है HR डिपार्टमेंट में, ताकि वो उनके एम्प्लॉय को समझ पाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंटरनेशनल कंपनसेशन मैनेजमेंट। कंपनसेशन मतलब क्या होता है बेटा? सैलरी के अलावा, ध्यान से सुनो, सैलरी के अलावा कंपनी एम्प्लॉय को जो डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है उसे कहते हैं कंपनसेशन। सैलरी के अलावा, सैलरी के अलावा कंपनी एम्प्लॉय को जो डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, फॉर एग्जांपल पर्क। पर्क मतलब उनको बंगलो देना। अच्छे एम्प्लॉय को कंपनी क्या करती है? बंगलो देती है। कुछ कुछ एम्प्लॉय को कंपनी शेयर्स देती है। कुछ कुछ एम्प्लॉय को कंपनी ट्रैवलिंग के लिए खर्चा देती है, टूर के लिए खर्चा देती है। तो किस लिए खर्चा देती है? वो जितने भी फैसिलिटीज है सैलरी के अलावा जो कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करती है उसे कंपनसेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मार्केटिंग का बंदा है और उस मार्केटिंग के बंदे ने टारगेट को अचीव कर लिया है, 20 दिन में टारगेट को अचीव कर लिया, तो उनको क्या बोलता है, 10 दिनों के लिए आप फिर से प्रोडक्ट बेचो और आपको सैलरी के अलावा कुछ ज्यादा पेमेंट दिया जाएगा, जिसको कंपनसेशन कहते हैं। सैलरी के अलावा आपको कुछ ज्यादा पे किया जाएगा, उसे कंपनसेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बंगलो देते हैं, नौकर चाकर देते हैं, गाड़ी देते हैं कंपनी में आने के लिए, टूर के लिए खर्चा देते हैं बाहर जाने के लिए, राइट। उनको क्या करते हैं, उनको गाड़ियाँ, उनको घर, टूर, सब फैसिलिटीज हम उनको देते हैं। मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी जितनी भी चीजें सैलरी के अलावा हम एम्प्लॉय को प्रोवाइड करते हैं उसे कंपनसेशन कहते हैं। समझा? जस्ट बेटा थिंक, सैलरी के 20,000 सैलरी है, 30,000 सैलरी है, 1 लाख सैलरी है, ये होगी सैलरी। बट सैलरी के अलावा कुछ मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी गिफ्ट्स होते हैं जो कंपनी प्रोवाइड करती है अपनी एम्प्लॉय को, और वो गिफ्ट्स को, फॉर एग्जाम्पल बंगलो, घर, घर, कार, नौकर, टूर्स, अलग अलग टूर एम्प्लॉय की फैमिली के लिए, ये सब प्रोवाइड करती है कंपनी सैलरी के अलावा। तो वो क्या कर रही है? तो वो एम्प्लॉय को कंपेंसेट कर रही है, एम्प्लॉय को कंपेंसेशन दे रही है उसके काम के लिए। क्यों क्यों करती है कंपनी है? क्योंकि उनको पता है अच्छे एम्प्लॉय की जरूरत सब कंपनी को होती है, हर कंपनी को होती है जो अच्छा एम्प्लॉय होता है। अगर आप भी अगर किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, आप भी अगर किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो और आप एक अच्छा काम कर रहे हो, तो कंपनी को भी लगेगा ये जो एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय हमारे कंपनी में हमेशा के लिए रहना चाहिए, इसकी जरूरत है हमारी कंपनी के लिए, अगर हमें ग्रो करना है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर कंपनी को ग्रो करना है
तो अच्छे एम्प्लॉय के साथ ही उन्हें जाना पड़ेगा, टैलेंटेड एम्प्लॉय के साथ ही उनको जाना पड़ेगा। अगर टैलेंट है, अगर टैलेंटेड एम्प्लॉय है तो ही वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर पाएंगे। अगर टैलेंटेड एम्प्लॉय नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन एवरेजली ही काम करती है। इसलिए आजकल आप नए नए सिनेरियो में देखो, जितनी भी आईटी कंपनी है, इन्फोसिस आगे बढ़ रही है, आईटी में कौन सी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आगे बढ़ रही है, महिंद्रा एंड महिंद्रा आगे बढ़ रही है, रिलायंस जियो आगे बढ़ रही है, फेसबुक आगे बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो अच्छे एम्प्लॉय है वो अच्छे एम्प्लॉय को रिटेंड करके रखा है अपने कंपनी के लिए। वाई एमबीए रखते हैं? उनको एमबीए क्यों चाहिए होते हैं? ज्यादा से ज्यादा कंपनी को एमबीए क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि एमबीए ये सारे कॉन्सेप्ट को स्टडी करके आते हैं। उनको पता होता है कि अगर मैं कंपनी के लिए यूजफुल हूँ तो कंपनी मुझे हमेशा के लिए रिटेन करके रखेंगी। अगर मुझे सैलरी के अलावा इतनी सारी चीजें कंपनी प्रोवाइड कर रही है तो मैं यही कंपनी में रह के काम करूंगा। अगर कंपनी बढ़ेगी तो मेरी सैलरी बढ़ेगी, अगर कंपनी बढ़ेगी तो मेरी सैलरी बढ़ेगी। पहले कंपनी सोचेंगी कि इन्होंने पहले महीने में अपना टारगेट अचीव किया है तो ये अच्छा अच्छा एम्प्लॉय है, तो वो एम्प्लॉय को रिटेन करने का काम कोई भी कंपनी करेंगी। और और अपने एम्प्लॉय के वजह से ही कोई भी कंपनी जानी जाती है। कोई भी कंपनी, एप्पल का नाम लेंगे तो स्टीव जॉब का आता है नाम, माइक्रोसॉफ्ट का नाम लेंगे तो पहले बिल गेट्स का आता है, अभी सत्या नाडेला का आता है। राइट ना? राइट ना? फेसबुक का अगर हम सोचते हैं तो मार्क जकरबर्ग का नाम आता है। स्पेसएक्स इतनी आगे बढ़ गई है, फट से उसके ऑनर का नाम आ गया इलॉन मस्क। राइट? तो कोई भी एम्प्लॉय आगे बढ़ने के लिए उनके जो ऑनर और उनके जो एम्प्लॉय होते हैं उनका बहुत बड़ा हैंड होता है, उनका बहुत बड़ा हैंड होता है। विदाउट अच्छे एम्प्लॉय कोई भी कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाती। कर पाएंगे, बढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगे, बढ़ते बढ़ते या फिर ग्रो भी करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा अगर उनके पास अच्छे एम्प्लॉय नहीं है। अगर उनके पास अच्छे एम्प्लॉय है तो 10 साल का टारगेट वो 5 साल में अचीव कर लेंगे। बट 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 अच्छे टैलेंट को कंपनी में रिटेन करने के लिए उनको अच्छी सैलरी, अच्छे पैकेज और एक अच्छा पर्क, अच्छा कंपेंसेशन देना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? repatriation. रिपेट्रिएशन, उसमें पढ़ो बेटा क्या है? Repatriation is process of returning back from an international assignment to a home country after completing the assignment or some other ठीक है। issue. रिपेट्रिएशन मतलब है कि आपकी कंपनी ने किसी एम्प्लॉय को, किसी ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय को इंटरनेशनल असाइनमेंट के तौर पे भेजा है। जैसे देखो, बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी सीखने के लिए हमने कुछ एम्प्लॉय को जापान में भेजा था। बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी सीखने के लिए इंडिया ने कुछ एम्प्लॉय को जापान में भेजा था। राइट? तो जब वो लोग वापस आके इंडिया में काम करने लगेंगे उसको बोलेंगे रिपेट्रिएशन। मतलब एम्प्लॉय है, इंडियन एम्प्लॉय है जो एम्प्लॉय अब्रॉड गया है। क्यों? क्योंकि वो कुछ इंटरनेशनल असाइनमेंट दिए हुए है कंपनी ने। असाइनमेंट है कि उनको नई टेक्नोलॉजी जो बुलेट ट्रेन के बारे में जापान ने डेवलप की है, जो हमारे पास नहीं है। आपको वहां पे जाके आपको वहां पे जाके क्या करना पड़ेगा? आपको वहां पे जाके उनके टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा। देखो, पृथ्वी 5 मिसाइल बनाने से पहले, पृथ्वी 5 मिसाइल किसने बनाई थी? पृथ्वी 5 मिसाइल किसने बनाई थी? अग्नि 5 या पृथ्वी 5 मिसाइल किसने बनाई थी? कौन है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? अरे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? नहीं नहीं, आपका नॉलेज बहुत ही वीक है।
फाइनल ईयर में हो? भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अभी लिख लोगे। 3 साल से वही कर रहे हो कहीं किसी ना किसी बुक में, और अगले साल वो बुक गायब हो जाएंगी। पृथ्वी 5 मिसाइल बनाने से पहले एपीजे अब्दुल कलाम को नासा भेजा गया था इंटरनेशनल असाइनमेंट में, ताकि वो जो टेक्नोलॉजी होती है पृथ्वी पृथ्वी 5 बनाने के लिए, वो टेक्नोलॉजी को सीख के आ सके। तो जब वो वापस आके इंडिया में वही टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं, उसे बोलते हैं रिप्रेट्रेशन, इंटरनेशनल असाइनमेंट टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी, एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी दे आर रिटर्निंग बैक टू द कंट्री। जब वो कंट्री में वापस आ जाते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रिप्रेट्रेशन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बेटा थोड़ा जनरल नॉलेज के ध्यान में रखो ना। नेक्स्ट क्या है? HRM in cross-culture mergers and acquisitions. सॉरी, HRM in cross-culture mergers and acquisitions. बेटा क्रॉस कल्चर के बारे में मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बता चुका हूँ ना। क्रॉस कल्चर के बारे में मैं आपको इसके पहले के मॉड्यूल में बता चुका हूँ ना। याद है क्या? हेलो बेटा, क्रॉस कल्चर के बारे में मैंने आपको इसके पहले के लेक्चर में बताया है ना। हाँ सर। तो आपको याद है या फिर से बताना पड़ेगा? नहीं है याद? सुनो, मैं आपको दो दो कंट्री का एग्जांपल देता हूँ। कौन से दो कंपनी? मैं आपको क्रॉस कल्चर के लिए इंडिया और जापान का एग्जांपल देता हूँ। जापान में हर बात अपने वक्त पे होती है। जापान में 9 बजे की ट्रेन 9 बजे ही चलती है, 9:05 कभी नहीं होता। बट इंडिया में 9 की ट्रेन 9:30 को आती है। क्या काम है ना, क्या काम है, वक्त की कदर उनके कल्चर में बैठ गया है। जब कोविड के पेशेंट आए थे तो जापान में कोविड के पेशेंट इतने ज्यादा नहीं थे। क्यों? क्योंकि इसके पहले जब ऐसा वायरस आया था तब उन्होंने अपने कल्चर में बिठा लिया था मास्क लगाना। तो पहले फेज में जापान में उतने ज्यादा ये नहीं आए, जापान में उतने ज्यादा पेशेंट नहीं मिले, सेकंड फेज में मिले। तो क्या होगा, दो देशों के अलग अलग कल्चर को मिक्स करके एक नया कल्चर बिल्ड करके अपने कंपनी में उस कल्चर को इम्प्लीमेंट करके कंपनी को सक्सेसफुल बनाना। जापान का कल्चर, इंडिया का कल्चर, जापान का कल्चर, इंडिया का कल्चर। जापान की कोई कंपनी है जो इंडिया में आके काम कर रही है, राइट। दोनों में मर्जर हुआ, दोनों में मर्जर हुआ 50-50%। जैसे हीरो होंडा, हीरो इंडिया की कंपनी, होंडा जापान की कंपनी, दोनों कंपनी साथ में आए। हीरो होंडा का नया प्लांट बनाया है उन्होंने, नए नए ऑटोमोबाइल सेक्टर में कार बनाई, नए नए बाइक्स बनाई। तो बाइक्स बनाने के इंडिया में बेचा। कैसा हुआ? बॉडी इंडिया की, टेक्नोलॉजी जापान की। बॉडी जो बाइक की बॉडी होती है वो इंडिया की, और जो टेक्नोलॉजी होती है इंजन टेक्नोलॉजी, और इंजन टेक्नोलॉजी इंजन का पूरा स्ट्रक्चर वो जापान का। दोनों साथ में आए। क्रॉस कल्चर का एग्जाम्पल, जापान का कल्चर, इंडिया का कल्चर, दोनों क्रॉस हुआ, एक नया कल्चर बिल्ड हुआ। नया कल्चर बिल्ड करके उन्होंने एक नई कंपनी बनाई हीरो होंडा, और वो कल्चर के साथ काम करके उन्होंने इंडियन मार्केट में ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी बनाई और ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट बेचे। मतलब क्रॉस कल्चर को मर्ज करके, एक्वायर करके एक दूसरे कंपनी को एक नई कंपनी बिल्ड करके प्रॉफिट कमाना, मतलब होता है मर्जर एंड एक्विजिशन विथ क्रॉस कल्चर।
विथ क्रॉस कल्चर। बेटा उसी दिन तो मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? Analysis of success and failure of acquisition and merger thought HR perspective. एचआर पर्सपेक्टिव ना। उसका लास्ट वाला प्यारा पढ़ो। उसका लास्ट पढ़ो। So, if you are an employee, honor and acquisition is a good thing. This means that your business gains so much revenue and popularity that another larger company sees its potential and purchase it. If your ठीक है ठीक own है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे इसका ये बताओ, टाइटल बताओ क्या था? analysis of success and failure of ओके। acquisition. अगर कोई एक बड़ी कंपनी है, कोई एक बड़ी कंपनी है, जैसे मैं दो कंपनी का नाम भूल गया जिनके बीच में मर्जर हुआ था। कोई एक इंटरनेशनल कंपनी है, वो आपकी कंपनी के अंदर इंटरेस्ट दिखा रही है, आपकी एक छोटी सी कंपनी है। उस इंटरनेशनल कंपनी को आपके कंपनी को क्या करना है? एक्वायर करना है, मतलब खरीदना है। तो उस बड़ी कंपनी को, उस इंटरनेशनल कंपनी को आपकी कंपनी में कुछ पोटेंशियल तो दिखा होगा, कुछ टैलेंट तो दिखा होगा, तभी वो आपकी कंपनी को खरीदना चाहते हैं, राइट? तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे में एक्वायर हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे में एक्वायर हो जाएंगे और नया प्रॉफिट को जनरेट करेंगे। नए प्रॉफिट को क्या करेंगे? वो जनरेट करेंगे। मर्जर एंड एक्वाजिशन, दो इंटरनेशनल कंपनियां एक साथ आ रही है। दो इंटरनेशनल कंपनियां एक साथ आने के बाद क्या होगा? एक नई कंपनी बनेगी। एक नई कंपनी बनने के बाद मार्केट में वो अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगी। सबसे बेस्ट एग्जांपल है हीरो होंडा का, अभी बंद हो गई है। मारुति सुजुकी, मारुति इंडियन कंपनी, सुजुकी जापानीज कंपनी। वो क्या होता है? वो दोनों साथ में आए, उन्होंने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बेचा, मार्केट से उन्होंने क्या किया? प्रॉफिट अर्न किया। तो मुझे बताओ, मारुति को सुजुकी में कुछ पोटेंशियल दिखा होगा, सुजुकी को मारुति में कुछ पोटेंशियल दिखा होगा, उन्होंने टेक्नोलॉजी शेयर की होंगी, तब उनको लगा होगा कि मैं अगर मारुति के साथ जाता हूँ तो ज्यादा से ज्यादा मार्केट को एक कैप्चर कर पाऊंगा, एक्वायर कर पाऊंगा। जैसे टाटा और डोकोमो दोनों ने मिलकर टाटा डोकोमो बनाई थी। डोकोमो जापान कंपनी थी, टाटा इंडिया की कंपनी थी, बट नहीं चल पाई। बट उनको कुछ ना कुछ पोटेंशियल दिखा होगा ना, जब उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में आना चाहा। ये होता है। 10:59 हो गए, नेक्स्ट लेक्चर लगेगा, ठीक है? आप नेक्स्ट लेक्चर में आइए, हम थर्ड मॉड्यूल का लिख लेंगे। ओके, हाँ सर। ठीक है।